Hello students, today we will discuss about characteristics of quality seed and its importance. As we know, seed is the basic input in agriculture. So, the seed quality is the possession of seed with physical and genetic purity along with its physiological and health status. So, there are different characteristics of quality seeds. These are, the first one is physical quality. Physical quality. It is the cleanliness of seed from other seeds, debris, inert matter, diseased seed, and insect damaged seeds. This is called as physical quality. The cleanliness of seed from other seeds, debris, inert matter हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. डिजीज सीड और इंसेक्ट डैमेज्ड सीड्स. So, the seed with physical quality should have क्या क्या होना चाहिए? देखिए, uniform size, uniform weight and uniform color. The seeds must be free from stones, debris, dust, leaves, flowers, twigs, etc. ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए सीड्स में. Stones, debris, dust, leaves, flowers and twigs, etc. Seeds must be free from molded, mold का इन्फेक्शन ना हो, molded ना हो, discolored नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए और सीड्स एम्प्टी नहीं होनी चाहिए. तो ये that's about physical quality. Now come to the second characteristics, which is genetic purity. Genetic purity भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं. It's an important character for achieving the desired goal of raising crops. Desired goal क्या हो सकता है? It may be yield, it may be for resistance, or it may be for desired quality factor. तो yield के लिए, resistance के लिए या desired quality factor के लिए genetic purity का होना बहुत जरूरी होता है. तो physical quality and genetic purity. Now, after genetic purity, the third characteristics of quality seed is physiological quality.
फिजियोलॉजिकल क्वालिटी क्या है? दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, देखिए दो बेसिक चीजें आती हैं. पहला जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन, और दूसरा सीड विगर. ये दो चीजें आती हैं किसमें? फिजियोलॉजिकल क्वालिटी में. तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सीड जर्मिनेबिलिटी या सीड जर्मिनेशन. क्या होता है सीड जर्मिनेशन? एक्चुअली सीड जर्मिनेशन is the extent of liveliness for production of seedling with normal root and shoot under favorable condition. Under favorable condition is known as germinability. फेवरेबल कंडीशन में सीडलिंग का प्रोडक्शन, ऐसी सीडलिंग जिसके पास नॉर्मल रूट हो और शूट हो, इसे क्या कहते हैं? सीड जर्मिनेबिलिटी या सीड जर्मिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज सीड विगर. सीड विगर. Seed vigor is the energy or stamina of the seed. Seed की energy या stamina to produce elite seedling. To produce elite सीड्स. इसे ही क्या कहते हैं? सीड विगर कहते हैं. और सीड विगर ही क्या करता है? डिटरमाइन करता है सीड के परफॉर्मेंस. सीड के परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करता है. सीड का परफॉर्मेंस कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, ये सीड विगर पर डिपेंड करता है. नाउ फिजियोलॉजिकल क्वालिटी के बाद है the fourth one is seed health. Seed health means seed health का मतलब होता है absence of insect infestation. इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए. एंड फंगल इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. अगर सीड इन्फेस्टेशन दिख रहा है या फंगल इन्फेक्शन है सीड में, तो सीड आपका क्या होगा? हेल्दी नहीं होगा. इफ सीड इज अनहेल्दी, अगर सीड अनहेल्दी होता है तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है, खराब हो जाती है, डिमिनिश कर जाती है. अगर सीड अनहेल्दी है तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है. सो दैट्स फिजियोलॉजिकल क्वालिटी एंड सीड हेल्थ. सो conclusively, we can say that a quality seed should have high genetic purity, physical purity,
high germinability, high vigor, higher field establishment, it must be free from pests and diseases, it has good shape, size and color, high longevity, शेल्फ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर ये सब है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। देखिए क्या क्या होना चाहिए, हाई जेनेटिक प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी, हाई जर्मिनेबिलिटी, हाई विगर, हायर फील्ड एस्टेब्लिशमेंट, फ्री फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेस, गुड शेप, साइज एंड कलर, हाई लॉन्गिविटी, शेल्फ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा दिन तक अगर आप उसे स्टोर करें तो वो ख़राब ना हो, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके आप उसे रख सकें, और लास्ट में हाई मार्केट वैल्यू। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्वालिटी सीड्स में होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी सीड्स के इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सीड्स, देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसके। पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है कि दे इंश्योर जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी ऑफ क्रॉप्स। जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी बिल्कुल फिक्स हो जाती है अगर क्वालिटी सीड आपने लगाया है तो। द सेकेंड वन इज इट गिव्स desired plant population. Third one, they have capacity to withstand under adverse condition. जाहिर सी बात है अगर क्वालिटी सीड है तो वो क्या होगा, उसके अंदर कैपेसिटी होगी एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो करने की। नेक्स्ट, दे इंश्योर यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। इनकी ग्रोथ क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, एक समान होगी, सारे सीड्स की ग्रोथ एक जैसी होगी, और उनकी मैच्योरिटी भी यूनिफॉर्म ग्रोथ होगी, तो वो क्या होंगे, एक ही समय पे मैच्योर हो जाएंगे। एक ही समय पे सारे प्लांट्स मैच्योर हो जाएंगे तो आप उसे हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो रूट सिस्टम है वो विल बी डेवलप मोर एफिशिएंट। जो रूट सिस्टम है वो और अच्छे से क्या होगा, डेवलप करेगा। अब इसका नतीजा क्या होगा कि दे विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स मोर एफिशिएंटली। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन मोर एफिशिएंटली होगा, और न्यूट्रिएंट्स का जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा एफिशिएंट होगा तो दे ऑल्सो इंश्योर्स हायर yield। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड एंड इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में।